चलिए सो आज ना वो क्या करेंगे, आज बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना प्रोटोकॉल का वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन कवर द मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच आर यूज्ड इन द कॉल फ्लोज, ठीक है। तो वो सारी चीजें कवर करते हैं ठीक है। ये जो सेशन है वो हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब पहले आपको हिंदी में ही प्रॉपर रहेगा। अगर जैसे किसी का डाउट आता है कि उसको हिंदी समझ नहीं आ रहा, सो देन वी कैन बी एबल टू प्रोवाइड द English version as well. But before that, we will start from the हिंदी, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा आपको, राइट, जो इंडिया से है। ओके सो देखिए, देखो अभी क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने बैठे हैं, ये तो क्लियर है ना। SIP प्रोटोकॉल एंड IMS का आर्किटेक्चर, मतलब IMS और SIP हम लोग यहाँ पढ़ने बैठे हैं। उसके अंदर के मटेरियल्स हैं, SDP है, डायमीटर्स हैं, सो वी कैन बी डिस्कस अबाउट फर्दर तो अभी स्टार्ट करते हैं नॉर्मल SIP से, कि SIP प्रोटोकॉल हम पढ़ने आए हैं। अब ये काम क्या करते हैं, क्या, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ SIP एंड व्हाट इज द कंटेंट्स आर अवेलेबल इन द SIP एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड द SIP। ओके, तो ये चीजें पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है, इसका ये फुल फॉर्म है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो SIP क्या है, SIP एक प्रोटोकॉल है जो कि सेशन को इनिशिएट करने के काम आता है, ठीक है। अब आप 4G में करो, लेगेसी नेटवर्क में करो, मीन्स 2G 3G में करो, या 5G में भी अगर आप जाओगे तो वहां भी आपका SIP दिखेगा, ठीक है। अब या I will request some mixed language used because if some are from the okay, got it. No, actually what I'm saying, I will start from the Hindi. If anything we have, so then we can be just translate on English as well, so no issue on that, no. Okay, so means first, what is the SIP? Yeah, so SIP basically is a signaling protocol. I will just write it, signaling protocol, which is used to create, modify and terminate a multimedia session, not a session, multimedia session over IP. This is the complete definition of SIP. So most of the keywords are clear. I will just start. SIP is a signaling protocol, and where we have to use for create. So means session create कर सकते हैं, session को modify कर सकते हैं, and as well as we can be terminate a session as well. So ये तीनों काम करेगा। आपको किसी को रिक्वेस्ट करना है, सेशन इनिशिएट करना है, या सेशन को मॉडिफाई करना है, ठीक है, शेयरिंग की सेशन के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, आफ्टर सेशन टर्मिनेट करना है। और ये किस टाइप का सेशन होता है, मल्टीमीडिया। सो मल्टीमीडिया मीनिंग दैट ऑडियो और वीडियो, ठीक। और ओवर द IP मीन्स एवरीवन अवेयर अबाउट इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज इंटरनेट protocol. So IPv4 and IPv6, two protocols version we have right now, IPv4 and IPv6, ठीक है। तो SIP का आपको क्लियर हुआ कि ये क्या एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी रिक्वेस्ट को, किसी भी सेशन को SIP के थ्रू। Then we can able to modify as well if we need to change anything in the session, so we can the modify as well, and after that terminate as well. अगर आपको सेशन टर्मिनेट करना है, so then we can use the SIP as well. ये किस टाइप का सेशन होता है, what type of session, multimedia type of session we can be modified or we can be create or we can be terminate over IP. ये जितना भी SIP चलेगा वो over IP चलेगा, ठीक है। IP का मतलब होता है, what is the meaning of IP? IP is the internet protocol. We have only two version currently, IPv4 and IPv6. तो इसमें कोई आपका अभी तक का कोई प्रॉब्लम और डाउट है कि SIP का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर अभी चलता है। I have one doubt. So we have audio and voice, video, everything, even in normal 4G also, right? So what's the difference
between that and this? Audio call and video call, or means what you're asking actually? I didn't get your point. See, even in 4G, 5G also, we have audio, video as input. Right, that is Yes. also over IP. Even 4G also. Yes, right. Actually, wait. Okay, I can understand. Audio and video. If we means if I need to go with the audio call, so that we can be able to check the IP and codec as well. Audio codec is the different and video codec is the different. To create a audio call and video call, actually IP will be the same for all, but we need to just change the codec. Means media we need to change for audio codec and for the video codec. Okay. So we can be. Over IMS, it's different and over. No. Same. Actually, IMS is the architecture only. We can be just able to check the servers. Means architecture means node only, VoLTE node only. But inside this, we will able to flow the SIP only. Okay, so inside IMS it is SIP. SIP, right? Yeah, right. So in 4G we use other signaling protocols like SIP1, SIP2, SCTP, GTU, all these things. No, GTP. Okay, got it. GTPV and GTPV2, right? Yeah. So these are also the protocol, but in the SIP actually currently we are trying to explain only SIP, not talking about the GTP and GTPV2 protocol. Okay. Yeah. In this we can we can't able to send any SIP request inside the GTP protocol. Actually, this is the tunnels between the servers, GTP tunnel and the GTPV2 tunnel. No. Actually, currently we are just trying to explain the SIP flow only. Okay, fine. So anyone means any issue on that? Means what is SIP exactly? So which level testing are we are learning? L1, L2. Which level is it is? Means which level? Yes, there are various L1, L2, L3. I think. No. Actually, L1, okay, got it. L1, L2, L3. Actually, this is the operation means like we can say the designation like that, right? L1, L2, L3, na. But these are not the L1, L2, L3 protocol actually. But L1, L2, L3 we can be able to see the SIP flow only. Okay. Including the IMS means VoLTE. But L1, L2, L3 you can be able to see the SIP flow only. Okay. These are the layers here. L1, L2, L3. Yeah. So anyone having any issue? ये SIP क्या है? ठीक है, SIP एक सिग्नलिंग. अभी देखो, अभी इसके अंदर चलेंगे कि ये क्रिएट में वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, मॉडिफाई क्यों यूज कर रहा हूँ, टर्मिनेट क्यों यूज कर रहा हूँ, ये सब अभी आएंगे इसके अंदर. अभी सिर्फ जस्ट डेफिनेशन मेंशन किए हैं कि SIP होता क्या है. ठीक है, अभी आगे चले. यस सर. ठीक है, अभी इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि बहुत बेसिक डेफिनेशन है इसका. नहीं आगे चलिए. ठीक है, अब ये हो गया कि SIP होता क्या है. अब SIP को फ्लो करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वर. ठीक है, कि कौन कौन से सर्वर्स आते हैं पिक्चर में SIP फ्लो कर. अब ये तो पता लग गया SIP क्या है. SIP क्रिएट कर लेगा, मॉडिफाई भी कर लेगा, टर्मिनेट भी कर लेगा. अब ये करेगा कैसे? अब ये तो नहीं कि वो हवा में तो करेगा नहीं, राइट. अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास SIP में नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब SIP को चलाना है तो अपने को सबसे पहले तो क्या लगेगा, एक UI लगेगा, यानी कि यूजर एजेंट होना चाहिए, राइट. सब्सक्राइबर होना चाहिए. सेकंड हमको प्रॉक्सी लगते हैं यहाँ पर, जिसको हम सर्वर भी आप बोल सकते हो. ठीक है, सर्वर्स लगते हैं, लोकेशन सर्वर लगता है, फोर्थ वन रजिस्टर सर्वर लगता है, और एक और लगता है बट वो आज अभी उसको यूज में लेंगे नहीं, रिडायरेक्ट सर्वर लगेगा. ठीक है, अभी हमारे इतने से ही काम रहेगा तो आज इतना ही लेके चलते हैं.
किसी भी देखो आप कॉल इनिशिएट करते हो या मैसेजिंग करते हो या रजिस्ट्रेशन कुछ भी XYZ आप अपने मोबाइल से करते हो, राइट? बिना मोबाइल के आप कुछ नहीं कर सकते, तो यूई पिक्चर में आएगा ही आएगा। प्रॉक्सी, अब आप देखो एक नॉर्मल कॉल्स लगाने जाते हो तो आपका सबसे पहले कॉल कहाँ जाता है? नियर बाय इनोड भी जाता है, फिर देन एमएमई जाता है, फिर एस गेटवे, पी गेटवे ऐसे जाता है, राइट? तो वो सब क्या है? वो सब प्रॉक्सीज है, वो सब सर्वर्स है। तो यहाँ पे हम उसका वर्ड सर्वर यूज ले रहे हैं, ठीक है? लोकेशन सर्वर, लोकेशन सर्वर होता है आपकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। वी कैन से द एचएचएस एज वेल, इसको एचएस बोल दो आप कि लोकेशन सर्वर मतलब आपका एचएचएस मान लीजिए कि आपकी कोई भी यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है, आप लोकेशन सर्वर से आप हेल्प ले सकते हैं। मगर आईएमएस में इसको एचएचएस बोलेंगे। अभी सिर्फ मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि लोकेशन सर्वर मतलब आप एचएचएस मान सकते हैं। रजिस्टर सर्वर, एक सेकेंड, रजिस्ट्रार सर्वर होता है आपका यूजर को रजिस्टर्ड करने के लिए। ये होगा आपका यूजर को रजिस्टर्ड करने के लिए, जैसे कि आपका एमएमई ये क्या करता है? यूजर को एमएमई क्या करेगा? यूजर को रजिस्टर्ड करेगा, तो ये भी एक रजिस्टर्ड सर्वर हो गया। आईएमएस में एक नोड आता है, आईएमएस में एक सर्वर आता है SCSCF, इसका काम होता है यूजर को रजिस्टर्ड करना। तो ये दोनों क्या है? रजिस्ट्रार सर्वर है। ये अपना यूजर इक्विपमेंट होता है, यानी कि आपका मोबाइल बोल सकते हो, डिवाइस बोल सकते हो, DUT बोल सकते हो। प्रॉक्सी मतलब आपका हो गया जितने भी आपके सर्वर्स आएंगे पिक्चर में बीच में। लोकेशन सर्वर को आप एचएचएस मान सकते हो, जस्ट फॉर द लोकेशन फाइंड आउट। एंड रजिस्ट्रार सर्वर, जहां आपका यूजर रजिस्टर्ड होगा, जिस सर्वर पर आपका यूजर रजिस्टर्ड होगा उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार सर्वर। अभी इन चार में कोई आपका है कोई ऐसा डाउट कि ये वर्ड का क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? एनीथिंग यू हैव, मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड्स? Sir, as we stated here, like we can say HSS is as a location server, right? And MME and SCSCF will be acting as a registrar server. Similarly, do we have any example related to proxy? Every server. Every server. So Yes. can we consider like as Same. as we are Yes. here- MME, HHS, MME, HHS, SCSC, all are the proxies. Okay, all are the proxies. So why we are not considering it as a single category? Why we have categorized as a proxy, location, and registrar? All Okay, three different categories. got it. Okay, these are the different purpose. These are the different purpose of this. Different purpose of this. Actually, these all are the proxies, but we have a different work for the HHS, for this, and for this as well. Okay, but as you are saying that HSS, MME, SCSF all are proxy servers, then why we are not categorizing location and registrar are the subcategories of proxy server? Okay, actually we have total multiple of 15 plus servers we have to execute any scenarios, and all are the proxies. I will just write down only means if anyone will stuck with means what is the meaning of location server. So I will just brief out this is the HHS. So means we can be considered as a HHS. Actually, inside the proxy, multiple servers we have. I have only mentioned the 3 servers, means 3 proxies. We have to just bifurcate these words only, but all are the proxies. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब समझ गया कि ये प्रॉक्सी को एक मतलब बाइफर्केशन मतलब कि किस टाइप का प्रॉक्सी है, क्या है, मतलब आप जैसे मैंने एचएचएस लिखा है, एमएमई लिखा है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपने इसको अलग से क्यों नहीं बता रहे, राइट? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकेशन और रजिस्ट्रार सर्वर जो आपके हैं, इनको प्रॉक्सी सर्वर की सब कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? अगर वो सेम कैटेगरी के हैं तो व्हाई वी आर मेंशनिंग इट एज अ डिफरेंट? मींस इसको अलग से क्यों रखा है? हाँ, ओके, अगर ये प्रॉक्सी सर्वर ही है, लोकेशन और रजिस्ट्रार भी। ये समझ गया। अभी आप क्या करो, अभी मैं देखो, अभी मैं इसमें क्या करूंगा, फिर इसमें आपको समझाने के लिए मैं इसमें प्रॉक्सी में अब आपका डाल दूंगा एस गेटवे डाल दूंगा, या पी गेटवे डाल दूंगा, या फिर आपका PCRF डाल दूंगा, ठीक है? अब इन सबके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, राइट? ठीक है। अब प्रॉक्सी का सिर्फ काम क्या होता है, अभी मैं वैसे उस लाइन पे आता, प्रॉक्सी का इधर मेनली काम होता है, जैसे आपका BTS मान लीजिए, BTS का काम क्या है? जूई से रिक्वेस्ट लेगा और फॉरवर्ड टू
आगे फॉरवर्ड कर देगा, राइट, फॉरवर्ड टू अदर होप। सिर्फ यही काम होता है प्रॉक्सी का। ये सिर्फ जनरली समझाने के लिए कि आप इसको मान सकते हैं सबको प्रॉक्सी, ठीक है। अभी बट मैं इसके बाद में आता हूँ वो चीजें। यहाँ प्रॉक्सी का मेन काम होता है, वैसा BTS मान लीजिए, केवल रिक्वेस्ट उठाएगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा और कुछ नहीं करेगा। So whatever अभी क्लियर comes हुआ? in the data path come under proxy, and whatever comes in signaling part. Sorry. So whatever comes in the data part. So those Data part, okay. Data part, we can just get the P gateway node and the PCRF node and the DNS only. Not in the means not like that the proxy and location and register. It will be coming picture in the MME and S gateway and P gateway for the data only. सर जैसे मतलब it's for the signaling part, right? Yeah, right. But these are the PDN network, no, not for the signaling, not for the communication purpose. It is for the browsing purpose only. We will not be actually we will not be added in the today session any HTTP request actually, because it is the different scenario for today. So that's why we today we can't be able to add the HTTP parameters only. वॉइस कॉल करते हैं तो उसमें ये SGW, PGW, PCR मतलब प्रॉक्सी हमारा काम में आएगा क्या? देखो सारे नोड काम में आते हैं, क्योंकि आप जब कॉल लगाते हो तो कॉल लगाने के लिए आपके IMS में ही चलेगा कॉल, अगर आप वोल्टी टू वोल्टी लगा रहे हो, क्योंकि LT में कॉल नहीं लगता है, ये आपको भी पता है, राइट। LT में कॉल लगाते हैं तो वो 2G 3G में स्विच हो जाता है, ठीक है। तो S गेटवे, P गेटवे, PCRF, MME ये सब आपके जब आप रजिस्टर्ड होएगा ना यूजर, तब आपके काम आएंगे। बट PCRF आपका कॉल में भी काम आएगा, क्योंकि उसकी जो IMS में भी उसकी कनेक्टिविटी होती है एक IMS के नोड के साथ, तो वो भी आएंगे, उसका भी आएगा पिक्चर में। तो मतलब ये सब आपके वॉइस में सिप मैसेज मेरा SGW PGW में फ्लो करता है क्या? नहीं। अगर यहाँ पर आपके यहाँ अगर मेरा सर सिप मैसेज SGW PGW में फ्लो नहीं करता और आपने कहा सिप का नेटवर्क एलिमेंट है प्रॉक्सी, तो ये सिप का नेटवर्क एलिमेंट कैसे हुआ जब मेरा SGW PGW में सिप मैसेज ही नहीं जाएगा? सुनो देखो, मेरा यहाँ पे ये प्रॉक्सी का मतलब ये नहीं है कि देखो प्रॉक्सी का मतलब मैंने बताया सर्वर। अब सर्वर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये वर्ड आपने सुने। अगर मैं यहाँ पे ये चीज हटा मैं सर वही एग्जांपल पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आपने कहा SGW मेरा अगर प्रॉक्सी में कंसीडर कर सकता हूँ, तो एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, ये आप देखो, आपको वो ये चीज मालूम है कि S गेटवे P गेटवे क्या है, यानी कि आपके ये नोड है, ये चीज आपको क्लियर। लेकिन मोस्ट ऑफ द बंदे को ये चीज क्लियर नहीं है कि ये वाले वर्ड क्या है, राइट। खाली उन्होंने ये चीज सुना है आर्किटेक्चर में, हाँ राइट। तो मैं अब जो आपका यहाँ पे बोला कि प्रॉक्सी आपका मेनली केवल अपना सिग्नलिंग में, यानी कि आपका क्या करेगा, रिक्वेस्ट उठाएगा और आगे भेजेगा। बट ये SIP में ही हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं जब S गेटवे P गेटवे पे सिर्फ फ्लो नहीं होता है? ये आपका क्वेश्चन है, राइट। नहीं सर, आप पहले मेरा क्वेश्चन समझने का ट्राई करो ना एक बार। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कहा सिप का नेटवर्क एलिमेंट है प्रॉक्सी, इट मींस राइट कि ये उसमें से फ्लो होगा, कि उसमें से फ्लो होगा। एक सेकंड सर, मतलब कि प्रॉक्सी अगर नेटवर्क एलिमेंट है तो मतलब इसमें सिप फ्लो होगा, एम आई राइट? अब अगर प्रॉक्सी एक नेटवर्क एलिमेंट है और उसमें सिप फ्लो होगा, तो अगर प्रॉक्सी SGW PGW भी हो सकते हैं, तो SGW और PGW में भी सिप फ्लो होना चाहिए। तो वही तो मैं आपको बता, एक सेकंड, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर मैं एक्चुअल जो उसके प्रॉक्सी है, अगर मैं उनको वो वर्ड यूज करूंगा, तो आपका क्वेश्चन होता है फिर अब ये क्या होता है, ठीक है। अब ये अपने IMS के नोड है, राइट। तो मैं इंस्टेड ऑफ दे ये भी यूज कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला है कि ये आपका सिप का ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया। जस्ट आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से, आपने बोला कि कौन कौन से प्रॉक्सी है, उसको बाइफरगेट करने के लिए। मतलब SGW और PGW प्रॉक्सी ये यहाँ पे सिप फ्लो नहीं होता है, इसमें डायमीटर्स चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सिप में नहीं आता है ये सीन। ओके, SGW और PGW में डायमीटर मतलब इंटरफेस चलते हैं, नॉट डायमीटर, इंटरफेस रहेगा। कौन सा होता है? S5 S8 होता है, आई थिंक सो। अच्छा, can I ask just a second something? Can you hear me? Yeah.
Yeah, can you just in English shortly explain what do you actually then mean by proxy, this nodes within the brackets? SGWPG, No. Okay, I mean, don't be confused. the proxy is some kind of intermediary server between Yes, right. Yes, user right. and Right. Intermediate server, yes. Yes, but in which when you say you wrote up proxy every server and then proxy this in brackets. No, wait. Totally. Okay, got it. What do you mean here? You are forcing for proxy word, but in which light we have to understand it? I will try to just understand. Actually, I have already mentioned the definition of this one. This is only the intermediate. But actually, most of the people don't know what is the meaning of this. So that's why I have mentioned it. ओके चलो अभी इसमें ना कंफ्यूज मत होइए, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यार, ठीक है। प्रॉक्सी का मतलब आप, अरे ये अभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मुझे पता नहीं, ये एस गेटवे पी गेटवे के बीच में ना वो चलता है डायमीटर CSR, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। CSR रिक्वेस्ट जाता है तो वो अपना डायमीटर है, मैंने लिखा था फिर वो हटा दिया, ठीक है। अभी जो डेफिनेशन लिखा था कि आपका क्या ये नहीं कि यहाँ से रिक्वेस्ट उठाएगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। अब वो कौन कौन से आते हैं ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपना PCSCF होता है, ठीक है। अब ये इसके बारे में अभी अंदर नहीं जाते हैं कि ये क्या काम करता है, ठीक है। बस खाली आप ये मान लीजिए आपका यूई अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करेगा इस वाली प्रॉक्सी हो तो इसका काम है आगे फॉरवर्ड करना। अब आगे कोई भी हो सकता है, नेक्स्ट प्रॉक्सी हो सकती है, नेक्स्ट कोई भी सर्वर हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप इतना मान लीजिए कि अपना ये इंटरमीडिएट सर्वर है प्रॉक्सी, जिसका यूजर का काम है यूजर की रिक्वेस्ट उठाएगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा, जहां भी करना होगा, जो भी नेक्स्ट उसका नोट पिक्चर में आएगा वहां उसको ये फॉरवर्ड कर देगा। अभी जब इसका कॉल फ्लो आएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि क्या बोलना चाह रहे हैं प्रॉक्सी का मतलब। प्रॉक्सी आप वीकेंड से जस्ट है इंटरमीडिएट सर्वर, केवल एक रिक्वेस्ट उठाएगा दूसरे को फॉरवर्ड कर देगा, इसलिए उसको बाइफर्केशन में नहीं डाल रहे। वो आपका समझाने के लिए है कि ये सब आपके प्रॉक्सीज ही हैं, मतलब इनको सर्वर ही बोलते हैं, इनको प्रॉक्सी ही बोलते हैं। मतलब अगर आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ एस गेटवे पी गेटवे तो केवल नाम के लिए आपको मिलेगा, बट आपसे जब क्वेश्चन होता है, जब कॉल चल रही है तो आपसे अपना सर्वर और प्रॉक्सी ही अपने को बोला जाता है, ठीक है। खाली जस्ट हो रहा है आपको समझाने के लिए। जब स्टार्ट होता है प्रॉक्सी का मतलब जस्ट आपका ये कि इंटरमीडिएट का आपका काम करेगा, ठीक है। अब जो ये वाला वर्ड अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरमीडिएट, तो आपके फिर दिमाग में अपना इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, तो फिर मेरे को वही सब चीजें लिखना पड़ेगा, तो इसलिए अभी ये सब चीजों पर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये अभी है, ये 4 है, बाकी एक और है वो अभी इसको ऐड नहीं करते क्योंकि अभी वो आज के उसमें काम नहीं आने वाला है कॉल में। और कोई डाउट है इसके अलावा जो आप पूछ रहे थे? मैं नाम तो नहीं देखा हूं। हेलो, हेलो, आप कोई क्वेश्चन कर रहा था, आई थिंक कौन था, अभिषेक था, देवाशीष था, मैं क्लियर नहीं है कौन था जिसने क्वेश्चन किया था। अभी आप इसको इंटरमीडिएट मान के चलिए। अब इंटरमीडिएट में कौन कौन सा वर्ड आता है अभी फर्स्ट में आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और भी काफी सारे, अभी देखो बोलना प्रॉक्सी आपको सबको ही है, इनको भी प्रॉक्सी बोलना है, इसको भी बोलना है। आगे जाके समझने के लिए अगर आपको बात कर रहे हैं तो ये सारे जितने भी सर्वर्स आते हैं वो उनका काम ही क्या होता है, यहाँ से उठाएगा यहाँ फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे कुछ भी अपना चेंज करेगा फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो अपना ऐसा इंटरमीडिएट काम करता है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स ये काम आपके काम आएंगे। देन उसके बाद आपकी कुछ रिक्वेस्ट है, जैसे कि जो वर्ड लिखे थे क्रिएट, मॉडिफाई, टर्मिनेट, ये तो एक जस्ट कीवर्ड थे। अब अपने को यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट यूज करना होता है उसके बिहाफ में,
तो जिसको हम बोलते हैं SIP रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट मेथड। अब ये हमारे पास मल्टीपल होती है, टोटल 14 रिक्वेस्ट होती हैं SIP कंप्लीट फ्लो करने के लिए। अब कौन कौन सी 14 रिक्वेस्ट होती हैं? फर्स्ट इनवाइट होते हैं, फिर बाय होते हैं, फिर कैंसिल होता है, ऐक होता है, ऑप्शन होता है और रजिस्टर होता है। ठीक है, और भी 14 है, मैसेज है, अपडेट है, इन्फो है, ट्रैक है, सब्सक्राइब है, नोटिफाई है, पब्लिश है, रेफर 4 and 4 8 और 6 14। ये टोटल 14 रिक्वेस्ट होती हैं, कंप्लीट SIP में काम आएंगी और सबके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। जैसे इनवाइट, इनविटेशन, इसके वर्ड्स ही समझ में आ रहा है। कोई सेशन क्रिएट करोगे तो आपको इनवाइट रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। बाय हम कब करते हैं? जब सेशन हमको काटना होता है, यानी कि सेशन टर्मिनेट करना होगा। यानी कि आपका जो स्टेबल सेशन है, स्टेबल सेशन को अगर आपको टर्मिनेट करना है तो देन वी कैन यूज द बाय। कैंसिल, मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, लेकिन फर्क कितना है कि आप इसको बोल सकते हैं मिस कॉल। मिस कॉल में क्या करते हैं? सेशन स्टेबल नहीं होता है, सिर्फ रिंग जाता है और हम फोन काट देते हैं, यानी कि हमारा सेशन टर्मिनेट हुआ है, बट बिफोर द स्टेबल्स, यानी कि स्टेबल होने से पहले हमने फोन को टर्मिनेट कर दिया, तो वो कैंसिल। और बाय हो गया स्टेबल होने के बाद, यदि सेशन को टर्मिनेट करने जाते हो तो आपका बाय वर्ड आता है काम में। एक्नॉलेज होता है यदि आपको फाइनल रेस्पॉन्स का, यदि आपको मान लो जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट किया और उसका फाइनल रेस्पॉन्स आ गया, तो उसके बाद एक्नॉलेज किया जाता है, तो ये फाइनल रेस्पॉन्स को एक्नॉलेज करने के काम आता है, एक्नॉलेजमेंट। ऑप्शन का मतलब होता है हार्ट बीट चेक करना, यानी कि जितने भी सर्वर्स आपके होते हैं उनके बीच में हार्ट बीट जो चेक होती है कि ये सर्वर की वर्किंग है या कुछ इश्यू तो नहीं है, तो हार्ट बीट के काम आता है ऑप्शन। रजिस्टर रिक्वेस्ट काम आती है आपको यूजर को रजिस्टर्ड करने के लिए। अगर आपको यूजर रजिस्टर्ड करना है, तो जैसे UEE है या MME या फिर SC/SCF कोई भी मान लीजिए, जो आपका यूजर रजिस्टर्ड करेगा, तो आपको रजिस्टर रिक्वेस्ट भेजने के काम आता है। ठीक है, रजिस्टर रिक्वेस्ट। मैसेज रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी को SMS करना है तो आपको मैसेज रिक्वेस्ट पिक्चर में आएगा। अपडेट का मतलब है मॉडिफाई, कुछ भी चेंजेस करना है विद इन सेशन तो आपको अपडेट रिक्वेस्ट काम में आएगा। इन्फो मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इफ यू नीड टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन टू एनी सर्वर तो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। प्रैक का मतलब होता है प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, तो इसका काम सेम ये है जैसा इसमें है, ये फाइनल रेस्पॉन्स के लिए काम आता है और ये प्रोविजनल। तो प्रोविजनल और फाइनल में केवल इतना डिफरेंस है, प्रोविजनल और फाइनल। फाइनल जो होता है आपका, जैसे आप सभी लोग बीटेक या कोई ग्रेजुएशन करते हैं, तो प्रोविजनल मतलब हो गया आपको जस्ट इंडिकेशन मिलता है। जैसे आप इंटरनल देते हैं, वो कॉलेज के अंदर रहता है, तो यानी कि आपका कितना भी नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फाइनल में क्या है, एक बार आपका रिजल्ट आ गया, सो देन वी कांट एबल टू डू एनीथिंग, तो ये आपका फाइनल है। यानी कि जब आप कोई रिक्वेस्ट फ्लैश करते हो तो आपका उसका फाइनल रेस्पॉन्स अगर आ गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते उस कॉल फ्लो में। मगर प्रोविजनल अगर आपका कुछ भी मान लो कोई भी, तो प्रोविजनल में क्या आपका आता क्या है, जैसे कि आपका सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपकी कॉल फॉरवर्ड हो रही है नहीं हो रही है, रिंग आ रही है नहीं आ रही, ये सब आपके प्रोविजनल, यानी कि स्टेबल होने से पहले जो भी सेशन के बीच में चलता है वो आपके प्रोविजनल में आता है। फाइनल में आते हैं आपके कि आपका सेशन स्टेबल हो गया या कोई या फिर आपका सेशन टर्मिनेट हो गया फाइनली, तो ये सब आपके फाइनल में आएंगे। उसको एक्नॉलेज करने के काम आता है प्रैक, यानी कि प्रोविजनल रेस्पॉन्स को एक्नॉलेज करने के काम आएगा प्रैक, और फाइनल रेस्पॉन्स को एक्नॉलेज करने के काम आता है आपका एक। ये डिफरेंस है दोनों में। सब्सक्राइब, ये चीज आप नॉर्मली यूट्यूब में देखते हैं, सब्सक्राइब पे हम यदि क्लिक कर देते हैं तो हमको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो वही ये चीज यहाँ पर आप कॉल सेंटर में जब रहते हो, तो कॉल सेंटर में क्या होता है, 15 कॉल सेंटर के एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन कॉल लगाने वाले टोटल एम्प्लॉइज होते हैं, मतलब जो यूजर से 1000 या 10,000 प्लस होते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप कॉल लगाते हो तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, बट सडनली एकदम से आवाज आती है कि मे आई हेल्प यू, तो उसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो यहाँ से सब्सक्राइब एक रिक्वेस्ट भेजता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो मेरे पास में ट्रिगर होता रहेगा।
तो वो सब आपके कॉल सेंटर साइड में ये बहुत अपना यूज में आता है। नोटिफाई आपका होता है नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि आपको किस टाइप का नोटिफिकेशन आ रहा है, या आपने कोई भी सब्सक्राइब कर रखा तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। पब्लिश सेम आपका नोटिफाई की तरह ही है। और रेफर, यदि आपको कोई भी दो यूजर्स के बीच में कोई कॉल चल रही है तो उसको अगर तीसरे को शेयर करना है तो वो रेफर से होता है। यानी कि अगर मान लो जैसे कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में क्या है कि मैं और आप बात कर रहे हैं और हमको तीसरे को ऐड करना है, तो हम दोनों का इंफॉर्मेशन किसी तीसरे सर्वर को, मतलब जहां से कॉन्फ्रेंस क्रिएट होता है, ठीक है, वो सर्वर होता है, एमआरएफ बोलते हैं उसे, तो इस सर्वर को हम लोग रेफर के थ्रू ही भेजते हैं। कंप्लीट हमारा डायलॉग जो दो पार्टीज के बीच में बना है, यदि मुझे तीसरे को ट्रांसफर भी करना है, अगर ABC है, ABC अगर हम दोनों बातें कर रहे हैं A और B, और मुझे C को अपना कॉल ट्रांसफर करना है, तो मैं रेफर के थ्रू ही करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट मेरा C के पास पहुंच जाएगा। तो रेफर करने के काम आता है ये। इसमें कोई है क्वेश्चन आपका? So basically, can you describe in short English? Okay. Invite means it is for the invitation. So we can say if we need to be go with the session, so we can use the invite request. If we need to be create any session for any call, so we can be use the invite request. And if we need to go with the session terminate after the establishment. Excuse me, sir. I request Ojo bhai to turn off his actually my video. Sorry. Ojo, इनको अजय भाई अपना वीडियो ऑन किया है, इनको दिक्कत हो रहा है, वही बोल रहे हो। वीडियो ऑन किया, मैं समझा नहीं। हाँ नहीं हाँ अभी हो गया। तो अजय अपने वीडियो ऑन किए थे, वही बोल रहे थे। ओके। तो अभी इसमें कोई आपका दिक्कत है कि ये देखो, ये सारी रिक्वेस्ट आपकी काम आने वाली है, बट ये है कि डिफरेंट पर्पस के लिए है। ये सेशन क्रिएट करना है, ये सेशन टर्मिनेट करने के लिए है, ये बिफोर टर्मिनेशन के लिए है, ये फाइनल रेस्पॉन्स जो आएगा उसको एक्नॉलेज करने के लिए है, ये हार्ट बीट चेक करना है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये मैसेजिंग के लिए है, मॉडिफिकेशन के लिए है, ये रिक्वेस्ट इन्फो शेयर करने के लिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है प्रॉक्सी को या सर्वर को, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन होगा। प्रैक प्रोविजनल रेस्पॉन्स को एक्नॉलेज करने के लिए है, ये सब्सक्राइब के लिए नोटिफिकेशन, एंड देन पब्लिश एंड देन रेफर। Sir, here is option by heartbeat. Heartbeat means what do you mean by heartbeat? हार्टबीट मीन्स जैसे कि आपका कोई भी सर्वर है, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में एक सर्वर होता है, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सर्वर है, और एक प्रोविजनल सर्वर है, तो दोनों के बीच में हार्टबीट मतलब होता है कि आप मीन्स द सर्वर इज कंप्लीटली वर्किंग और नॉट, मीन्स इज देयर एनी मीन्स बॉटम लैग इज देयर और नॉट। We need to just check the bottom leg, means is there any issue between this node, so also we can be able to check from the option request. If we are getting the response of any request from any from the server, so we can able to just see ki it is okay or means it is okay or not. Means we just check, we are just pinging that server now. Yes, right. We can say use the ping. Yes, means from this to this. हार्टबीट का मतलब जस्ट होता है कि अगर दो सर्वर के बीच में हार्टबीट चल रहा है, मतलब वो जैसे हम लोग, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि हमारा हार्ट अभी चल रहा है, तो मतलब जिंदा है, ठीक है, तो सेम ऐसी सर्वर के बीच में है। अगर आपका सर्वर में अगर आपके जैसे एक अपनी ऑप्शन रिक्वेस्ट अगर फ्लो हो रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट जा रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है, उसी सर्वर से कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वो जब तक आपका सेशन चलेगा वो तब तक आपका चलता रहेगा। तो आपके वो हार्ट बीट मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपकी सर्वर का जो कैपेबिलिटी है, सर्वर की जो आपकी ये कि आपके सर्वर वर्किंग है नहीं है, वो आपके चेक होते रहता है। इसका कोई टेक्निकल टर्म तो होगा सर हार्ट बीट? सॉरी, टेक्निकल टर्म ये तो लेमन लैंग्वेज होगा ही कि नहीं हार्ट बीट ही है, हार्ट बीट ही है, उसका लेमन बोलो या उसको टेक्निकल वर्ड बोलो, वो अपना हार्ट बीट ही है। Can you repeat now in English? Okay, option request, we just need to just means option with basically we have to just check the heartbeat between the servers, means the server is properly working or not. I mean, what is it related to? Actually, we have to just check the servers, means between the server we have to just check
कि both our server links are up and down, up and running. Means this one is server A, this one is server B. If we need to go with the ping, so from A to B, if we are trying to ping, so we have to able to check the server is working or not. Am I right? Means from the ping, we have to able to check na कि the server is working or not. From the ping. HR. Okay. Yes. So same like this word, heartbeat. Just to check the server is up and running or not. Yes. Okay. I'm Yes. trying so to. we have to use the option request instead of this check. Working it's or not. actually these are actually messages. Inside the option, only option request will flow, and inside the option we have means we will have to The complete all these commands. These are commands or these are messages. SI messages will look at. This is the message. This is the message. Okay. देखो अभी मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो दिखेगा आपको, उसके अंदर क्या जाएगा अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूँ भाई. अच्छा ठीक है अभी इसके अंदर क्या जाएगा वो नहीं मैंने बताया अभी आपको. ओके ठीक है. सिर्फ ये बताया कि ये ऑप्शन रिक्वेस्ट जाएगा. अब इसके अंदर क्या जाएगा वो आपके अभी हेडर्स है, वो अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूँ. ठीक है. Sir, these A and B are UEs or नहीं भाई, ये सर्वर्स आप कंफ्यूज मत होइए भाई. मैं सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ यार. ये सर्वर्स हैं आपके. केवल जो आपकी ऑप्शन रिक्वेस्ट फ्लो होती है वो सर्वर्स को चेक करने के लिए है कि आपके बीच जो अभी एक आपका A नंबर सर्वर है, B नंबर सर्वर है, उसके बीच में कोई बॉटम लैग तो नहीं बन रहा है. So बॉटम लैग मतलब कोई नेटवर्क तो इशू नहीं आ रहा है. It means UEs cannot share the option request between each other. No, UE to UE no. Only Okay. servers. You mean to say UE can't generate option request? No. Okay. Yeah, Abhishek. You are working in same domain? No, I have worked in telecom. No. I think you are working in same domain. No. I am just asking A and B are UE or servers? No. Servers. सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे A और B, अब यहाँ पे मैं सर्वर लिखूंगा पूरा बड़ा लगेगा ना यार. तो A और B लिखने में क्या दिक्कत है? Okay. ठीक है सर. Is there any maximum number of repeated requests, like invite by? I mean, if the message doesn't pass through the network, is there a limit of number of repeated yes invites? Yes, we will use the SIP timer. In SIP timer. Okay, a SIP timer, and within SIP timer there is a periodical number of repeated messages, is it? If we have to set, for example, 30 millisecond. Okay, if we are not getting any response within this timeline, so the user will continuously send request, and then after this timeline has been closed, so then we can just able to send the cancel request. So this request we can be able to send multiple times. It means not from my side, but yeah, from the UE side, if we are not able to use any timers. Okay. ठीक है, ये आपका रिक्वेस्ट रहा. अब रिक्वेस्ट के अंदर क्या जाता है, जैसे अभी आपने पूछा कि इसके अंदर मैसेज क्या जाते हैं, पर उससे पहले भी मैं रेस्पॉन्स बता देता हूँ. अभी आपने रिक्वेस्ट तो देखा, अब किसी को अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो उम्मीद भी करोगे रेस्पॉन्स आएगा. तो अभी आपको रेस्पॉन्स दो बताए थे साथ में, प्रोविजनल एंड फाइनल. प्रोविजनल का मतलब होता है इंडिकेशंस, कि आपको रिंगिंग आ रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है. सेशन आपका चल रहा है, वो भी आपका एक इंडिकेशन है. आपकी कॉल कहीं और फॉरवर्ड की जा रही है, वो भी एक इंडिकेशन है. ठीक है, ये जो प्रोविजनल रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है वो 1xx से होता है. 1xx का मीनिंग होता है 100 से 199.
ठीक है, 1 से जो भी आपके रेस्पॉन्स हो रही है समझने के लिए कि हाँ मतलब आगे फ्यूचर के लिए कि अब जो 1 से स्टार्ट हो रहा है वो आपके प्रोविजनल रेस्पॉन्स है। फाइनल जो स्टार्ट होते हैं आपके 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपके फाइनल रेस्पॉन्स। अगर आपको 2 सीरीज में दिख रहा है तो इसका मीनिंग अलग होगा, 3 में दिख रहा है इसका मीनिंग अलग होगा, 4 में इसका मीनिंग अलग है, 5 एंड 6 तो सबके मीनिंग अलग अलग। अब क्योंकि प्रोविजनल में तो सिर्फ एक ही सीरीज में है तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आपको 180 आया, 100 आया है, कुछ और भी, तो आपको प्रोविजनल यानी कि इंडिकेशन मिल रहा है, अभी अब तक आपको फाइनल रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन फाइनल में आपके टोटल 5 है और 5 के सबके अपने अपने अलग अलग मीनिंग है। यदि आपका सेशन या कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या सेशन स्टेबल कर रहे हो, फिर अपना कोई रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हो, अगर वो सक्सेस होता है तो आपको 2 की सीरीज में मिलेगा, 2xx में मिलेगा। 2xx में भी वही सेम है, इतने ही रेस्पॉन्स होते हैं, लेकिन इतने रेस्पॉन्स आपको रिक्वायरमेंट में नहीं आएंगे। रिक्वायरमेंट में सिर्फ इतना आएगा, सिर्फ 2 ही रेस्पॉन्स अपने को रिक्वायर्ड में आएंगे, 200 एंड 202। 200 का मतलब होता है 200 ओके एंड 202 मतलब 202 एक्सेप्टेड। ठीक है, इनको भी देखते हैं कि ये क्या है एक्सेप्टेड और क्योंकि दोनों अगर सक्सेस ही हैं तो इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा है। 200 का मतलब होता है कि आपकी कॉल सक्सेस हो गई है, यानी कि अब इसके बाद कोई मतलब नहीं है, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। इसका मतलब है रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हुई है, अभी तक फाइनल नहीं दिया है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ है, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मतलब वो भी एक तरह से आपका सक्सेस ही हुआ। 3xx आपका होता है रीडायरेक्ट, ये रीडायरेक्ट रेस्पॉन्स होते हैं। यानी आप किसी को रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, जैसे नॉर्मली जियो वगैरह या नोकिया के लैपटॉप्स में क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखा जाता है, तो यदि आप ट्राई भी करते हो तो वो वेबसाइट आपकी चलेगी नहीं, वो आपका रिडायरेक्ट करके आपको कुछ और पेज खोल देगी, मतलब कुछ नेगेटिव आता है कि दिस साइट कांट बी कंटेंट, ऐसा कुछ आता है, अपना ओपन हो जाता है तो वो अपना हो गया रिडायरेक्ट। तो आपको उस केस में आपको 3 सीरीज से आपको रेस्पॉन्सेज दिखेंगे, 302, 301 लाइक दैट। 4 का मतलब होता है क्लाइंट एरर, यानी कि आपके जैसे यूई है तो यूई अब आप जो कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, कुछ सिंटैक्स मिसिंग हो गया, या यूई ने खुद ही फोन काट दिया, या फिर यूई ने फोन किया किसी दूसरे यूई को, तो वो दूसरा यूजर कहीं और कॉल पर बिजी है, तो यानी कि वो भी अपना यूई साइड से इशू हो गया। तो इस तरह के जो इशू होते हैं क्लाइंट साइड से, तो वो सब आते हैं 4 की सीरीज में। 5 की सीरीज में आते हैं सर्वर फेलियर, यानी कि आपका कोई सर्वर फेलियर है, कोई नोड आपका प्रॉब्लम कर रहा है, कोई भी नोड आपका फेलियर है, कुछ आपका इशू आ रहा है, यानी कि सर्वर आपका प्रॉब्लम कर रहा है, कोई प्रॉक्सी आपकी प्रॉब्लम कर रही है, डाउन पड़ी है, अलार्म्स आ रखा है, कोई क्रिटिकल अलार्म्स है, उस केस में आपको 5xx सीरीज में मिलेगा। 6xx होता है आपका ग्लोबल फेलियर। ग्लोबल फेलियर का मतलब होता है जैसे कि अपना होता है क्या बोलते हैं उसको, डिक्लाइन। ठीक है, तो ग्लोबल फेलियर मतलब हो गया परमानेंटली इसमें कुछ नहीं हो सकता, यानी कि आपकी जो लिमिट है वो एक्सीड है, यानी कि जो आपने थ्रेशोल्ड मेरा सेट कर रखा है कि मेरा इतना ही होना चाहिए, उससे ऊपर जाएगा तो उस चीज को वो क्लोज कर देगा, ऑटोमेटिक डिक्लाइन कर देगा। जैसे आप एटीएम में जाते हो, एक लिमिट होता है कि 2 बार 3 बार अगर रॉन्ग पासवर्ड डालोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक कर देगा, डिक्लाइन कर देगा। सेम ऐसी कॉन्फ्रेंस में अगर आप 5 यूजर, जैसे आई थिंक इंडिया में 5 की कैपेसिटी है कि एक बंदा 5 कनेक्ट कर सकता है, कोई किसी किसी यूजर में 3 से ऊपर आप कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है। तो उस केस में आता है 6xx रेस्पॉन्स। तो ये आपके रेस्पॉन्सेज हैं प्रोविजनल और फाइनल। प्रोविजनल आपके 1xx से स्टार्ट होते हैं जस्ट फॉर द इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन मतलब 100 का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे प्रोविजनल में हमको कौन कौन सा देखने मिलेगा, 100 ट्राइंग मिलेगा। 100 ट्राइंग का मतलब होता है टू स्टॉप द रीट्रांसमिशन ऑफ इनवाइट। ठीक है, जो हम पहली जो फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रॉक्सी के पास, प्रॉक्सी क्या करेगी, आगे फॉरवर्ड करेगी, एज अ इंटरमीडिएट सर्वर है। अब वो क्या करेगा, उसको 100 ट्राइंग नाम का एक प्रोविजनल रेस्पॉन्स भेज देगा कि यस आई रिसीव योर रिक्वेस्ट एंड आई विल फॉरवर्ड टू द अदर होप, सो प्लीज डोंट सेंड द अगेन इनवाइट रिक्वेस्ट अंटिल योर टाइमर हैज बीन क्लोज्ड और अंटिल आई विल नॉट शेयर एनी रेस्पॉन्स। वो जब तक क्या करेगा, 100 ट्राइंग उसको भेज के शांत कर देगा, वो इसको स्टॉप कर देगा यूजर को। और इसके अलावा और इसमें हम पढ़ेंगे 180 रिंगिंग। 180 रिंगिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पर
180 रिंगिंग का मतलब होता है आपकी इनकमिंग कॉल, जो आपको रिंग सुनाई देता है वो आपको 180 रिंगिंग से उसको नोटेड किया गया है। उसके बाद 183 कि आपका सेशन इज इन प्रोग्रेस, कि आपका सेशन चल रहा है, ये आपका 183 बताएगा। एक 181 इसमें पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड। यदि आपकी कॉल अगर आगे फॉरवर्ड होती है तो आपको इंडिकेशन सुनाई देता है। फोन जब लगता है तो इंडिकेशन आता है कि योर कॉल हैज बीन फॉरवर्डेड टू द अनदर नंबर, तो वो अपना इंडिकेशन है, वो आपका 181 होता है। आपका सेशन चल रहा है तो आपका 183 है। 180 का मतलब होता है रिंगिंग आपको आ रही है, और 100 ट्राइंग का मतलब होता है जो आपने इनवाइट रिक्वेस्ट भेजा है उसको स्टॉप करने के लिए, कि अंटिल जब तक आपको नहीं कोई भी इनवाइट भेजना है, जब तक मैं आपको कोई रेस्पॉन्स ना दे दूं या फिर आपका टाइमर क्लोज ना हो जाए, तब तक वो दोबारा इनवाइट फ्लैश नहीं करेगा। अगर वो 100 ट्राइंग नहीं भेजेगा तो यूजर को लगेगा कि कोई भी रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, वो फोन काटेगा फिर से लगाएगा, फोन काटेगा फिर से लगाएगा, और ऐसा ही हम लोग करते हैं। मगर सिग्नलिंग में वेट वो अपना ऑटोमेटिक, इसमें टाइमर्स लगे होते हैं, 300 सेकंड्स होता है जो कि रिफ्रेशमेंट के, वो भी टाइमर्स पे नहीं करते हैं बात। ठीक है, तो ये अपने रेस्पॉन्सेज हैं जो अपने कॉल फ्लोज में भी काम आएंगे। और अभी हम लोग जो यूज करते हैं, अगर आप लोग सभी टेलीकॉम से हैं तो आप देखते भी होंगे AMR करके आता है कुछ बोल्टी में, तो वहां पे ये सब दिखता है, इनवाइट 200 एग, ये सब दिखते हैं आपको। ठीक है, तो ये SIP के रेस्पॉन्सेज हैं। अभी रिक्वेस्ट देखे थे उनके ये अपने रेस्पॉन्सेज हैं। अब क्या करते हैं हम, पहले एक बेसिक कॉल लेते हैं, जो अभी तक जितना पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं कि उसका फ्लो कैसा बनेगा, और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ उसके लॉग्स भी कि फ्लो एक्चुअल में दिखता कैसा है। Sorry, will you tell something in English about this Okay. previous slide? Okay. Okay. So provisional response we have to just use for the indications. Means if you have to send any request, means any invite request to any proxy, so proxy will just revert to the user. That means to stop the retransmission of invite, and the proxy is also told to the user in 100 time ki I will forward that invite request to the other host. So this is the indication, first one. Second one indication 180 means this is from the 1xx scenarios. Second one is 180. 180 means if you will get any indication of any incoming call, so you will get the 180. And then 181. 180 meaning is 181 is meaning that your call has been forwarded to the another number, so it will indicate from the 181. And 183, fourth one. 183 means your session is in progress, so it will indicate from the 183. And for the forwarding it will indicate for the 181, and 180 it is for the indication of any call. And 100 trying, 100 meaning for that your means I will receive your invite and please don't retransmission of invite continuously, so I will forward the invite to the other host. So it is from the provisional side. It means so that means it's indications, not for the finals. It is indication only for the session. And in the final we have multiple responses in the final: 2x6, 3x6, 4, 5 and 6. So 2xx meaning is that your call has been successfully executed, successfully done, so it will indicate from the 2xx. Redirect means if you will means for example the Gmail and the YouTube has been blocked in your mobile, but if you will try to log in the YouTube and the Gmail, so it will redirect your actual request to the other servers. So that means the redirection happened in the 3xx. 4xx, it is from the client side issue. So that means, what is the meaning of that? If we are trying to send any request, and in the request is there any syntax is missing, is there any timeout is happening from the UE side, and as well as the UE has been busy from some other calls, so it will be indicate from the 4xx response. 5xx meaning it is indicated from the server side. That means server is failed and server is generate any alarm, server is in critical issue, server is down, so we will get the 5xx response instead of the invite request or any register request.
6xx, that means global failure. So global failure means you have exceed the limit. Means suppose for example, we have the limit for 5 users to connect in the conference call, and the 6th person will try to add in this call, so it is declined. And you can say from the example, in the ATM as well, you will try the wrong credential in the ATM board, and you will automatically after 3 or 4 attempt, you will means your ATM card will not be accepted. So this is also the decline. So these are the means a function of the final response. Hello. Okay, thank you. Yeah. ठीक है, अभी जो देखा है हमने ये रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट, ठीक है, अब एक कॉल देख लेते हैं छोटा सा कि कॉल एक्चुअल में फ्लो होता है कैसे, यही चीज आपको पढ़ना है आगे में। ठीक है, एक कॉल लगाने के लिए मिनिमम 2 यूजर एजेंट्स लगेंगे और इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे मैं प्रॉक्सी लगा लेता हूँ, लेकिन ये सिर्फ आप प्रॉक्सी या भी आप वर्ड यूज कर लीजिए प्रॉक्सी, मगर आईएमएस में इन सबके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। UE2 हो गया, UE1 हो गया। ठीक है, कोई भी अगर आपको कॉल इनिशिएट करना है, सेशन इनिशिएट करना है, तो आपको रिक्वेस्ट बताया था, इनवाइट रिक्वेस्ट। मान लो UE1 को कॉल लगाना है, तो UE1 क्या करेगा, इनवाइट रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये प्रॉक्सी के पास पहुंचा। प्रॉक्सी ने क्या किया, जैसे इनवाइट पहुंचा, प्रॉक्सी ने तुरंत ऐसे 100 रैंक्स फ्लैश कर दिया। प्रॉक्सी कभी भी यूजर से नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो प्रॉक्सी कभी यूजर साइड से नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इनवाइट रिक्वेस्ट गया प्रॉक्सी के पास, प्रॉक्सी ने क्या किया, 100 रैंक भेज दिया कि यू जस्ट स्टॉप द रिट्रांसमिशन ऑफ इनवाइट, कि इनवाइट आप मत भेजिए, मेरे को रिसीव हो गया है, एंड जस्ट आई विल फॉरवर्ड द इनवाइट रिक्वेस्ट टू अदर होप। प्रॉक्सी का काम क्या है, रिक्वेस्ट उठाएगा और आगे फॉरवर्ड करेगा, जस्ट लाइक इंटरमीडिएट सर्वर। इसने क्या किया, आगे इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया। अब जब किसी के पास रिक्वेस्ट जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद 2-3 आई थिंक 2 to 3 सेकंड्स होता है जिसमें हमारा कॉल लग जाता है। आई थिंक यही है अपना इंडस्ट्री का जो अपना थ्रेशोल्ड है, 2 to 3 सेकंड्स ही है। उसके बाद क्या होता है, तो रिंगिंग स्टार्ट हो जाता है। रिंगिंग के लिए हमको इंडिकेशन हमारे पास है 180। रिंगिंग। उसके बाद क्या होता है, रिंग जाने के बाद यूजर्स फोन पिक कर लेता है। तो कॉल जब पिक होता है, तो कॉल पिक हुआ, तो यहाँ हमारा 200 ओके, ये फाइनल सक्सेसफुल रेस्पॉन्स 200 ओके। यानी कि इनवाइट का जो हमने इनवाइट जो अभी सेशन इनिशिएट किया था, इनिशिएट जो इनवाइट किया उसका इंडिकेशन मिला, यानी कि वेल जा रहा है, और उसके बाद फोन पिक हो गया। फोन पिक हो गया मतलब फाइनल रेस्पॉन्स आ गया। फाइनल रेस्पॉन्स आता है तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट होता है, रिक्वेस्ट। यहां से एक्नॉलेजमेंट जाएगा। एक्नॉलेजमेंट जाने के बाद क्या होता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, यानी कि आरटीपी बनेगा। आरटीपी मतलब होता है रियल टाइम प्रोटोकॉल। इसमें क्या होगा, ऑडियो वीडियो, मतलब जो अगर आप ऑडियो कॉल्स पर है तो आपके ऑडियो फ्लो हो रहा है, वीडियो कॉल पर आपके वीडियो के पैकेट्स आपके फ्लो हो रहे हैं, यानी आपका सेशन चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, यदि कॉल जब कम्युनिकेशन चलता रहता है, फिर लास्ट में क्या होता है, ये लोग आपस में कॉल टर्मिनेट करते हैं, फोन ड्रॉप करते हैं। फोन यानी कि स्टेबल होने के बाद, कॉल स्टेबल हो गया, आरटीपी चल रहा है, उसके बाद यदि मुझे फोन ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पर क्या भेजूंगा, बाय रिक्वेस्ट। ये होता है बेसिक कॉल फ्लो। एक सेशन क्रिएट किया, सबसे पहले सेशन क्रिएट करने के बाद 100 ट्राइंग भेजा प्रॉक्सी ने
क्यों भेजा? इनवाइट को के रिट्रांसमिशन को स्टॉप करने के लिए। नहीं तो यूजर क्या करेगा, वेट करेगा, फिर से फोन काटेगा, फिर से भेजेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा उसका। तो वहाँ प्रॉक्सी क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस रिक्वेस्ट को फ्लो करना है, जो पहले आई थी उसको करना है, जो बाद में आई उसको करना है। तो वो कंफ्यूजन के चक्कर में वो आपसे 100 ट्राइंग भेज के उसको स्टॉप कर देता है। और प्रॉक्सी का काम है आगे फॉरवर्ड करना। तो ये कॉल रिक्वेस्ट उठाएगा, आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। रिक्वेस्ट जाने के बाद में आपका रिंगिंग स्टार्ट होगा। रिंगिंग आपका 183 है, सॉरी 180 रिंगिंग है। ये आपका कॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि आपके रिंग बज रहा है, यानी कि आपको रिंग सुनाई दे रहा है। तो आपका इंडिकेशन आपको 180 आएगा। जब आप फोन पिक कर लेते हो तो आपका 200 ओके यहाँ से सेंड होगा। जैसी फाइनल रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, देन उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट जाएगा। फाइनल रेस्पॉन्स को एक्नॉलेज करने के लिए आपने रिक्वेस्ट भेज दिया। उसके बाद क्या होता है, आपका फोन पिक होने के बाद कम्युनिकेशन यानी आपका मीडिया स्टार्ट हो जाता है। तो आरटीपी मतलब आपका मीडिया स्टार्ट हो गया। और जब कॉल कंप्लीट हो जाती है, कॉल काटने के लिए, ड्रॉप करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट, यानी कि स्टेबल होने के बाद यदि फोन टर्मिनेट करना है तो आपको बाय रिक्वेस्ट फ्लैश करना है और उसका रेस्पॉन्स 200 ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? इसमें कोई दिक्कत आ रहा है बताइए। Can you now explain just in English shortly? Got it. Means if okay, this is the basic call for the SIP. So for the call, we will just get the two user agents, means two UE, and we have to just mention one proxy in between the two UEs. So the first UE will try to call to UE2, and the UE1 will send the invite request. Invite meaning that to create a session. So for the create a session, we have to use the invite request. So UE1 will send the invite request to proxy, and proxy will return back to the provisional response 100 trying. So what is the meaning of 100 trying? To just stop the retransmission of invite. And then proxy will just forward the request to other node, and it means other hope. Other hope means there is only UE second. So the proxy will send the invite request to UE second. And then after receiving the invite request, the ringing will be start. So 180 ringing will be triggered from the UE2 to UE1 by using the proxy. And then after some time, 200 OK will be received. 200 OK means your invite request has been successful. So 200 OK will be triggered from the UE2 to UE1. So that means the UE2 will pick your phone. And then after getting the final response 200 OK, you will send the acknowledgement. Means UE1 will send the acknowledgement for the final response. RTP meaning media has been started, means communication will be triggered between UE and UE2. So the media has been started in the RTP. And then after completing the RTP and the session establishment, we will just try to get the terminate a call. So we will use the by request to terminate a call. Means after establishment a session, if we need to terminate a session, then we will use the by request, and then we will send the by request and will receive the final response of by request. RTP is real-time protocol. RTP is on board on UDP and TCP or UDP. Yeah. Thanks. UDP and transport is also available, na? Means RTP is a transport protocol. Actually, inside the RTP, we will able to capture the payloads, right? So the transport layer will be flow inside the RTP. UDP and RTP both. Sam? Yeah. If there is any issue in the proxy server, 100 time will be not coming, right? Yes. So after this, you will get, we will send the invite request and will return any 5xx response if the proxy has been down or anything. 5xx so in that, will be in that case, we have received sometimes that a party call someone, then he did not receive any call.
and call is failed again and again. What could be the issue in that case? Yes, so means first we need to be just check from the proxy side. Means it means the proxy is working or not. So means we have the credential of the proxy, so we can be able to just open the Linux and we'll check the proxy is working or not. This is the first troubleshooting from tester side. So in that proxy, so many server, right, sir? Yeah. So maybe SGP, serving gateway. Wait. Like Wait. The call will be established from not from the S gateway, P gateway. Actually, we are working on the SIP and IMS, not for the LT right now. So don't be use this word S gateway and P gateway. Okay. If we are using, suppose for example, S gateway is up and P gateway is down. For example, means your call will be flow from UE to MME and MME to S gateway, and then S gateway till S gateway server is working, but P gateway is down. So you will get the response, negative response from the P gateway side. Yes. Which message will be then sent in SIP? SIP. Don't be correlate the LT keywords inside this one. Don't be use this word as of now. S gateway, P gateway, and this is from the LT side, was. Yeah, but if some node from the carrier side, let's say LT, doesn't matter if LT or something else, if one node is broken, let's say, or not responding. So you will get the 5xx response. 5xx server failure. 5x will be server failure response. Yes. Okay. So and then after getting the any failure response, so the second point we will go with the troubleshooting. So for the troubleshooting, first point we have to just log in the particular server from for the credential, means whatever credential they have provided to us. Just try to log in. If the login is failed, just try for the ping as well. If it is not working, so then for the proxy we can't be able to do anything. We have to just raise the bug, because for the proxy tester can't be do anything. Got it? So sir, yes, yeah. This could be the for any specific user, or could be for or sometimes we see that all user is accesses, but some user cannot. So in that case, what could be the issues in the proxy server or others profiling issue of the user? Means for this scenario. Hello. Yes. Yeah. Do you get my question, sir? I mean, for the some user, we see that they are not connecting to the other party, but others user can do it. Is it in that case? What could be the issue, and how can we check? No. Okay. So first we need to be check our user APN as well. APN is completely means APN is provisioned successfully in the HHS or not. So first we will try for this, and also we have to just check the discovery option inside the UE mobile. Third one means UE setting, we need to check it. So means most of the parameter we have to check in the troubleshooting side. If we are not able to make any call, but some other users can able to make the call for that particular proxy. So we have to check the most of the parameters from our UE side, not from any proxy side. Also, okay, that's that could Mohammed, maybe there is a profile issue of user. Okay, by the HSS or I not registered to call VoLTE. In that case, is going to CSMP. Okay, if CSMP is enabled in your network, so it's going on 3G or 2G. If your pure LT network, your call is not successfully connected to B part B, maybe the reason of profile issue of the customer. Okay. Yes, sir. We have also seen that, sir.
if VoLTE is enabled in the handset, they cannot make any. I mean, sometimes they can call, but sometimes they cannot call, and there is no happening CSFB. Yes, yes. So Mohammed, on this time, first you need to check the APN. APN is properly configured in the HHS site. First troubleshooting point is this. If the provision is successfully triggered, so then you need to just check your UE will trigger which proxy, because there are multiple proxies in the server for the suppose proxy name is PCSCF. So we have 4 to 5 proxies. So first you need to check where you have to trigger, and the other user where have to trigger, who means it may be the proxy P1 is having some issue, but other user will trigger the P2 for the same proxy. So these things is also you need to check from the UE side only. So most of the things actually not a particular we can say. Got my point. Actually, there is no a single reason to just troubleshoot your UE, because we have a multiple parameters we have to check it. That's a good. User is actually configure. His profile is okay. Then there might be some issue in this. So the PCCF, I mean, which you are already mentioned, the letter side UE to PCCF or other proxy server, right? As you mentioned, we need to check thoroughly, right? Hop by hop. Yes. You will just try to multiple attach and deattach. If it may be the UE will trigger the another proxy, means for the PCSCF we have a 4 to 5 proxies we have. So it may be, if you will try multiple time attach and deattach, so it may be the connect with this the server second. If all these things are okay, if the everything is completely working, but UE will not be trigger any call, so it is the issue from the UE side here. Means everything is okay, means we have checked all these things from our side and from the developer side as well. So after that we are not able to make any call from our UE side, so it may be the issue from your subscriber end. Actually, this type of issue also we are facing. The same UE we are trying to call, but the other person are trying to call with the same environment. But I will not make any call, but some other guy will make a call. So we will just try to troubleshoot from our side, from the UE team. So after that, they will just directly told to us just replace the UE. So most of the time UE will not be support. Actually, we have to we will able to see the signals, but the UE internally will not be accept any request if everything is okay. I believe that in the course you will have all the with some kind of call flows or something like this, yeah? Yes, actually they have many call flows, means whatever will use in your daily life, like forwarding, call waiting, SMS, registration, basic call, ammo means from 1 to 2 call, to second user to first call, SMS, call waiting, call hold, consultation hold, and like that, and announcement call flow. So all these call flow will be covered. Super. और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई इसमें? ये सबसे बेसिक कॉल यही है जी. Sometimes call is successfully established. In the meantime, some user got silent call. I mean, a party talking something, but the B party cannot hearing anything. So in that case, there is with the mute call. I mean, in between the two parties. So yes, in which why it's happened, and in which stage in which stage is actually detected? I have mentioned. First one, troubleshooting, you need to just check the SIP headers, connection line. If it is okay, then you just check the firewall side.
देखो, just try to one more means one question. There is nothing. We have a single liner answer to troubleshoot anything, right? We have to Right, sir. check, right. So we have to check the multiple parameters from the tester side. Tester will able to check the all request, responses, headers, messages, right? And if the all these things are okay, means this is the header. If it is okay, so then we can't able to do nothing. We have to just communicate with firewall team, we have to communicate with GILAN team. So multiple teams we have to different means for the same issues we have a different teams. You got my point, right? Means we don't have any single liner answer any troubleshooting issues. When you are mentioning headers, you are doing this checking in Wireshark or what? Right, in Wireshark. And what exactly actually you can distinguish good from bad header? I mean, just I will a show hint. you. I will show you. Yes, I will show you, and I will write down that one as well. अभी ये बेसिक कॉल है. अभी इसमें कोई दिक्कत है तो मैं फिर उसके बाद में आगे चलता हूँ. इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनीथिंग यू हैव एनी क्वेश्चन इन बेसिक कॉल फ्लो? So basically you told that ki RTP packet will flow after getting the final acknowledgement. So sometimes we are getting the early media like some songs is playing from the another user. I didn't mention actually. Yes, you are right. I didn't mention actually 183. But for this call, yeah. So like on that time, so from which message after that we will be getting the RTP packet? 183. Sorry. After 183, you will get the ringing, and then this one, and then this one. First 183 will be covered this, and then provisional acknowledgement will be getting, and then after 180 ringing. Actually, I didn't mention both parameters for the early media. I didn't mention it. Okay. Yeah. So you didn't mention the QCI part, the QCI 1 bandwidth will establish or QCI 5. प्रवीण एक दिन में अभी मतलब IMS में भी पहुंचना है क्या आपको? यू आर वर्किंग इन विच डोमेन प्रवीण? अभी जस्ट आपको बेसिक चल रहा है. ये QCI हो गया या IMS का कोई पैरामीटर मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ. Are you hear me? Yeah, RF. Yes. अरे भाई, today started SIP. आज ही खत्म करना है. 24 घंटे रहो यहाँ. मैं इसलिए इसमें कोई LT या कोई बोल्टी ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर रहा. सिर्फ आपको उसके जो सिग्नलिंग चलता है, जो मीडिया चलता है, वो आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ. अभी कुछ ऐड मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं है पैसा. Yes, sir. I think there is something special in the next upcoming, right? Right. Getting these all questions. Yes. ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए. उसके बाद आपको पढ़ना है, काफी सारी चीजें पढ़नी. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये मतलब इनके ये आपको जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इनवाइट 180, ये सिर्फ आपके माइंड में सेट करने के लिए है. बाकी तो अभी प्रॉपर एक साथ पूरा पढ़ना है. अभी इसमें QCI में इसमें IMS ऐड नहीं कर रहा अभी. ठीक है. अभी आपकी जो एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो LT साइड से ही होता है. ठीक है. वो भी मैं अभी कुछ ऐड नहीं कर रहा. S गेटवे, P गेटवे अभी मैंने वो भी कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. अभी कुछ नहीं ऐड हुआ है उसमें. सिर्फ बेसिक आपको बताया जा रहा है कि जो आप पोल्टी आप जो IMS पढ़ने के लिए आप आए हो, उसमें SIP जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, कैसा दिखता है, वो रिक्वेस्ट कैसी दिखती है, उसका नाम क्या होता है, बस वो आपका भी चल रहा है. ठीक है. मैं ये आपको वायरशार्क में दिखा भी देता हूँ कि कैसा दिखता है. नहीं, इसमें नहीं.
ठीक है, अभी जो किसी ने पूछा था ना 183 देखो आता है, ठीक है, मैं अभी लेकिन ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जो अर्ली मीडिया आपने बोला कि अनाउंसमेंट होता है, तो वो अनाउंसमेंट भी पहले होता है, ठीक है, तो वो MRF से होता है, तो मुझे यहाँ पे वो भी अभी ऐड करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो जैसे अभी आपने वहां देखा था, अब मैं इसको भी और फिल्टर लगा लेता हूँ। Can you speak in English this part, because okay it will be hard to repeat it, and I believe that we all know this much. I know. Okay, so okay, so in the YXcheck you will able to get all these things. Source, destination means source means where the request has been triggered, and destination means where has to be set. Yeah, and which one protocol question, please, one question. This one is captured with the phone, with some Nemo device, or I don't know, QXDM, or this one is captured in core network by traces, or what? Coordinate traces? No. This traces is coming from the server. Server means server means we can say currently as of now, suppose we have to we have to try the capture on the SCSCF node. Yeah, SCSCF proxy, SCSCF server. So this is the trace for the SCSCF, and the request will be triggered from the UE only. UE will send the request and will be captured the traces on the Linux, means PuTTY. Not from the Nemo or whatever. Okay, PuTTY. Okay, I got it. Yeah. Actually, I don't know the Nemo, you know? Means I think Nemo will be used in the RF side, so I'm not aware on that. Okay, yes, like Thames Pocket or something like this, you know. I don't know, boss. Okay, it's air interface. Forget. Okay. Yeah. Okay, and then so means which protocol we are using, SIP and SDP. Actually, SDP we will not be able to see the SDP as of now. Only the SIP packets we have just check out SIP request and like that. So protocol versions you have to check it, SIP and SDP, and the complete length. So means it doesn't matter. So we can have we can be just remove that one as well. So this is the info. So first I will have to just mention and open it. So first I will just trigger the invite request. So this is the invite request. You have to capture it, and you will have to see in the YXcheck as well. This is the request, and first one is the invite. And this is the number of second party, means where I need to be trigger a call, second party call. Yeah, and then after the proxy will send the 100 try, and then the request will be forwarded to the other hop. So these things are available, and after that 183 I didn't provide to you, and prac nothing. Yeah, and then after 180 ringing will be triggered. Then after 180 ringing, you will get the 200 OK of the invite. It is mentioned in the bracket. And then final response, we will trigger an acknowledgement. And after completing the session, you will get a means if you will try to terminate a session, so you will capture a buy request and then 200 OK of the buy. तो अभी इसमें क्या हुआ है, देखो जो आपको कॉल फ्लो में दिखाया था ऐसा, जितना रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आपको दिख रहा है एज इट इज आपको पीके फाइल में भी दिखेगा। इनवाइट रिक्वेस्ट आपको दिखेगा, 100 दिखेगा, 183 अभी आपने नहीं देखा है वो छोड़िए, देन 180 रिंगिंग आपको दिखेगा, इनवाइट का 200 ओके आपको दिखेगा, एक्नॉलेजमेंट दिखेगा, बाय एंड 200 ओके दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें दिखेंगे। तो सेम ऐसे ही पीकेएफ आपको दिखता है, और अगर कोई भी एरर मैसेज आएगा तो वो भी आपका कैप्चर्ड होगा। जैसे मान लो इनवाइट गया, किसी ने भाई पूछा था कि प्रॉक्सी में कुछ इश्यू है, तो 100 टाइम नहीं देगा, नॉर्मल दे, राइट, वो आपको कोई 5xx रेस्पॉन्स देगा, तो यहाँ 500 लिखा रहेगा, मतलब कोई भी 5xx यहाँ लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो साफ आपको दिख जाएगा कि अच्छा 5xx आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, तो वो भी आपको आईपी दिख जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है, तो आप उसको भी ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो पीके फाइल में आपको सारा प्रॉपर दिखेगा। जी
सर ये बीच में जो सोर्स और डेस्टिनेशन में देखिए 34 का कौन सा आईपी एड्रेस चेंज हो गया, मतलब मैं सोच रहा था UE1 UE2 देखिए जो लास्ट में 74 नहीं भाई, अगर आपने देखा हो मैंने इसमें कॉल आईडी पार्टिकुलर फिल्टर लगा के रखा, तो इसमें क्या देखो ये IMS का ट्रेस है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको SIP पैकेट्स दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेस में मल्टीपल 7 प्रॉक्सीज हैं। अच्छा मतलब मल्टीपल तो इसलिए हाँ तो इसलिए आपको यहाँ चेंज हुआ है। ओके। मेरा इधर मोटो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं दिखा रहा था, मेरा मोटो था इधर जो आपने रिक्वेस्ट अभी देखा है ना उसमें नोटपैड में, वो आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो कैसा दिखता है, सिर्फ ये दिखाना। अच्छा ऐसे आता है, फिर हम लोगों को पर्टिकुलर एक दो यूजर के बीच में तो उसका मतलब कॉल आईडी फिल्टर लगा लीजिए ना, कॉल आईडी देखो मैंने लगा रखा है ना, अभी कॉल आईडी फिल्टर लगाया है। कहाँ पे सर? ऊपर देखो ना जो ग्रीन हो रहा है ना, ग्रीन जो दिख रहा है, हाँ। ये मैंने फिल्टर लगा रखा है ना। अच्छा ठीक है। तो ऐसा आपको वायरशार्क में दिखेगा, एज इट इज मैसेज देखते हैं जो आप पढ़ते हो ना, एज इट इज आपको मैसेज दिखेगा, और सेम ऐसा ही जैसे अभी आपको कोई भी कॉल फ्लो बताया जाएगा सेम टाइम पे आपको उसका वायरशार्क में दिखा दिया जाएगा। और मेन आपके इंटरव्यू में वायरशार्क से ही क्वेश्चंस होते हैं। ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, थ्योरी में नहीं पूछा जाता है। थ्योरी आपसे पूछा जाएगा मान लो 40 to 30%, बाकी सारा आपका प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकल मतलब आपसे कोई लाइनक्स वगैरह तो पूछेगा लास्ट में, बट आपको पैकेट्स के बारे में पूछे जाते हैं कि आप ये भी नहीं पूछेगा। अगर आप सिप और IMS पे इंटरव्यू देते हो तो LT साइड्स का वो आपसे नहीं पूछेगा, और आपसे RF के साइड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एकदम दिमाग में पिक्चर, क्योंकि वो पोर्शन आपका कोर में आएगा, वो आपका डिफरेंट पोर्शन हो गया। और यहाँ पर ये भी है, एक चीज और है, अगर आप कोई इंटरव्यू देने बैठते हो तो वो पर्टिकुलर एक प्रॉक्सी पे ही आपका काम दिखाया जाता है, ठीक है। या आपको इंटरव्यू में भी अगर देना होता है पर्टिकुलर एक प्रॉक्सी पे, क्योंकि मल्टीपल प्रॉक्सीज पे एक बंदा काम नहीं कर सकता। ये RF नहीं है, RF में आप एक बंदे को 2G 3G 4G सब कुछ बता दो, वो नहीं कर सकता। टेस्टिंग में आपको पर्टिकुलर एक प्रॉक्सी आपको दिया जाता है। Can you show us in statistics flow graph? Which one? Okay, statistics. Okay. Flow graph. Okay, just a second. Statistics. Yeah. Why you're going with statistics? I will just use the call flow, na? This one. Flow yes, sequence. Flow graph. Yeah. Flow graph, yeah? Yes. So there are multiple proxies, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. You can change them names, yeah. To put Actually, currently, I don't have any host file, so that's why I will not be able to change anything. I mean, because it is possible, yeah. No, not possible. Actually, we will require the host file. Okay. Yeah, this one. Where is it? So we have to mention the host file inside this. So right now we don't have any host file, but we can be able to check. This is the name of that one. Suppose for example 5036::7. What is the name of this IP address? So this is the IP address of PCSCF. And the destination you can be able to check in the route SCSCF. But we can't able to change any name because we don't have any host file right now. Yeah. So with the host file, it is possible. Right. Host file, it is mandatory to check these IP name. Then it's easier to hang to orientate it within the flows. And But actually we can be able to check in the headers now. So why it is required to change the name of IPs? If you are working in a particular company, then you will get the host file, right? But exactly. As of now, from my side, actually we can't able to get the host file from anywhere. Yes. Yeah. So it is some issue, right? Of course. Yeah. So this type of call flows and the Wireshark. तो आपको क्या होगा जब आप कॉल फ्लो यहाँ पढ़ोगे, सेम चीज आपको Wireshark में दिखाया जाएगा। क्वेश्चंस जो आपके होते हैं Wireshark से होते हैं,
यानी कि आपके प्रैक्टिकल सेशन जो मतलब जिसे बोला जाता है, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं, आपके कॉल फ्लो तो देखो कॉल फ्लो आपसे पूछेगा ही, बहुत बेसिक चीज है। कॉल फ्लो में क्वेश्चंस आपके होते हैं कि इनवाइट में क्या जाता है, इसमें क्या जाता है, इसमें क्या जाता है, ये सब क्वेश्चंस चलता है। व्हाट इज द कंटेंट्स इन इनवाइट, व्हाट इज द कंटेंट्स इन 180, व्हाट इज द मैसेज इनसाइड दैट 200, ओके। इस तरह के आपके क्वेश्चंस चलते हैं कंटिन्यू। एज ऑफ नाउ कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एलटी साइड। अभी एलटी और वोल्टी में नहीं घुस रहे हैं हम। Can you just give a brief on the architecture? Which architecture you required? The IMS. Hamlata, currently I am not able to go inside the IMS only because we don't have any because we have a less time to explain the complete IMS side. सर एक्चुअली मैं कल का सेशन मिस कर दिया, तो उसका कोई वीडियो या फिर क्या कुछ हुआ था? दैट इज व्हाई। कल देखो, कल सिर्फ नॉन टेक्निकल था। कल आपके सिर्फ इश्यूज को मतलब कल आपके बारे में जानना था, और दूसरा से बेसिक बताना था कि क्या क्या चीजें कवर्ड होगा कंप्लीट। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें मैनुअल टेस्टिंग आपने पे आउट किया है, राइट। आप जहाँ सीख रहे हो वो आपके मैनुअल टेस्टिंग है, लेकिन मैंने ये बोला था कि कंप्लीट होने के बाद मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग और प्लस डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, ठीक है, आपका डिप्लॉयमेंट और अपना ऑटोमेशन, तो ये भी उसमें कवर्ड रहेगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स। जितने भी आपके सेशंस चलेंगे ना, जैसे मान लो आपने थ्योरी किया, आपका 2 आवर्स का टाइम है, तो आपने मान लो 1.5 आवर्स आपका थ्योरी चला, तो लास्ट के 30 मिनट 15 मिनट आपका वो दिखाया जाएगा वायरशार्क में कि वो किस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज अब ये अपना डिस्कस हुआ था, और लास्ट में कंप्लीट होने के बाद या मिड में तो आपको जितने भी टूल्स आएंगे आपके, ठीक है, वो आपको दिखाई जाएंगे लाइव। जैसे कि आपका हो गया जीरा हो गया, ठीक है, जीरा हो गया, या फिर आपका एक्सेल या मोबा एक्सट्रीम या पुट्टी हो गया, कि मतलब किस तरह से काम करता है, लाइनक्स कैसे आपको यूज करना है, वो भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। उसके साथ साथ में आपको ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन आपको पूरा बताया जाएगा कि आपको ऑटोमेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। तीसरा आपको डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉयमेंट में क्या आपको रिक्वायर्ड होती है, क्या चीज आपको फ्लेवर्स में देखना है, क्या आपको साइज डालना है, वो पूरा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस, क्या आपको जितना भी फाइल है, आपकी जेसॉन फाइल है या बीएनएफ में अंदर जितने भी फाइल्स आते हो, कैसे आपको एडिट होंगी, कौन कौन से पैरामीटर्स आपको एडिट करने हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। सर ये भी टूल यूज होंगे क्या सर? QXDM, QCAT, QPST। ये QXDM एक्चुअली क्वेलकॉम का टूल है, तो ये भी आपको दिखा दिया जाएगा। एक्चुअली केवल क्वेलकॉम में ही यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है। बाकी मुझे सैमसंग का मुझे आइडिया नहीं है सैमसंग में होता है क्या, बट क्वेलकॉम में होता है ये। इंटरनेट से कुछ आ सकते हैं सर? नहीं, देखो, अगर आप क्वेलकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, या फिर आप QXDM लिख के अपने सीवी में भेज रहे हो, तो QXDM अगर मान लो कि नोकिया एम्प्लॉय है तो उसको नहीं पता कि क्या होता है QXDM। एरिक्सन एम्प्लॉय है, उसको नहीं पता क्या होता है QXDM, राइट। तो वो अब देखो, ये जितने भी टूल्स या जितने भी टूल्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो स्पेसिफिक वो अपने कंपनी वाइज होते हैं। हर एक कंपनी में अलग मिलेगा। जैसे अपने माविनियर में जाओ, उसमें अलग चलता होगा, क्वेलकॉम में अपना QXDM हो गया, नोकिया में अपना पुट्टी चलता है या फिर मोबा एक्सट्रीम चलता है, एरिक्सन में कुछ और चलता होगा। तो वो डिपेंड होता है भाई, आपको सेम टूल हर जगह काम नहीं आएगा, राइट। मगर वायरशार्क आपको ऑल ओवर वर्ल्ड काम आने वाला है। हाँ और जैसे आपने जो टूल्स देखे ना, जैसे पुट्टी देखा है, तो पुट्टी अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल नोकिया में बैठे हो, तो नोकिया में चलो आप पुट्टी यूज कर लोगे। अभी बहुत कंपनी जैसे अग्निटी हो गया, हरमन हो गया, यहाँ पर पुट्टी ये लोग नहीं जानते, बट आप अपना पुट्टी में भी लॉग इन कर सकते हो अगर आप पुट्टी में कंफर्टेबल हो। देखो आपको क्या है, ये पुट्टी हो गया, मोबा एक्सट्रीम, ये सब क्या है, ये आपके जस्ट वो है टर्मिनल्स है, राइट। और उसके ऊपर आप क्या करते हो, लाइनक्स डालते हो। काम आपको लाइनक्स पे ही करना है, तो आप पुट्टी से करो, मोबा एक्सट्रीम से करो, एक्सेल से करो, वो आपके खुद के कंफर्टेबल के लिए। कंपनी आपको नहीं बोलेगा, कंपनी आपको बोलेगा ये है सर्वर का क्रेडेंशियल, यू हैव टू जस्ट लॉग इन। तो आप अब वो पुट्टी से करो, या और भी काफी सारे टूल्स है, एक्सेल है, मोबा एक्सट्रीम है, किसी से भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता वहां पर। Can you say in English just when you use QXDM and QPST? Actually QXDM Qualcomm. Actually QXDM will be used in the Qualcomm only. It is not the fixed tool to use any company. Nokia will use some other tools, Samsung will use some other tools, Ericsson will use some others, 3UK will use some other tools.
right? O2, EE, every operators, every customer, every client will use a different tools to execute the scenarios. So QXDM I understand this, but if you use QXDM, what for you are using it? No, I'm not using the QXDM. QXDM is also the I think same, because you will capture the logs from the QXDM side. But I am not using because I am not the part of the Qualcomm. Actually, we have multiple tools now, so we can't able to capture all these things from every tool. You understand my point now? What I'm saying? Yeah. Yes. Just a second. और कोई क्वेश्चन है आप बताइए इसमें अभी तक के में कोई मतलब इसके अलावा भी कुछ पूछ सकते हो आप, जैसे कि अभी देखो ये चीजें हैं, ये चीज तो आपको आगे सब पढ़ना ही है, क्या क्या कवर्ड होना है ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। और अभी मैं आपको मैनुअली ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग आपका पूरा रहेगा, इसमें SIP IMS पूरा कवर्ड होगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन, बाकी रिज्यूमे हो गया, आपको क्या बोलना है वहां पर वो भी हो गया, उसके अलावा क्या प्रोजेक्ट आपको दिखाना है वो सब चीजें सारा कवर्ड होगा यहाँ से, ठीक है। और ये चीज अगर आपने Yes. Hello. Yesterday's video session. यस्टरडे सेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूं यस्टरडे में क्या हुआ है। यस्टरडे में सिर्फ वो चीजें अपना ओके जस्ट अ सेकंड, आई थिंक हेमलता राइट? Yes. Yes, Hemlata, yesterday we had discussed about the future in SIP and IMS, and total our session will based on non-technical things. Why a candidate moves in this particular domain. So yesterday I discussed over this point only. Yesterday we don't have any technical discussion. Yeah. So guys, any other query question? You were telling that the automation part and all will come in the course. Yes. Because it will be at from my side, not from the coaching side, na? So don't be forced to coaching. Can you tell us? Hemlata is already joined in the protocol testing batch. Now he is much excited to learn more and more the technology. Hemlata, I'm right or wrong? Yes. So currently we are okay. So you are already working in the protocol side. No, not working. It's taken gap due to some family reasons. Now wants to start again. Okay. Sir, me also started again. Okay. Can you tell us just a couple of examples? What are the main causes for the silent call or mute call? I have already discussed now. Silent call or mute call, we can't able to make a flow, na? We have to just suppose for example the first party will send the second party call and the call has been established for example, and then after some time the call has been mute, so we have to check we have to check the connection header. Yeah, but my question was cause can be bad radio, cause can be it may be, I don't know, it may be Cause it may be from the radio side as well. Packet delay, lots of reason. Polymuting. Yes. I just wanted from your side to hear three or four causes. Okay. It may be from the firewall side. It may be from the RF side. It may be from the SIP, means
means connection at the side as well. Sir, from my side, we have found a good radio condition, but silent call and mute call is happened in many times. That could be the other issue. So it may be the issue from the firewall side as well. So can you elaborate a little bit more about this caused by firewall? Firewall means we use the firewall for the security purpose. Means some packets will be dropped due to some other reasons. Actually, we can't able to provide the actual the one-liner answer for this causes, right? We have to troubleshoot for means first we require the PK file, then everything will be available in the PK file. Means exactly what is the issue. Harbajo, you can join this module. Everything will cover. Whatever you have anxiety to learn, will provide each and everything. No issue. Yeah. Thank you. I will not ask so much questions. Sorry. Yeah. Today's day Sorry, one. please. Whole thing will. I will just provide the basics only. Will not be going the troubleshooting side, na? Okay, yes. Sorry. So you will have it. No issue. Details I can. Hello. Yeah. With this side. Hello. Yeah. Amit. Yeah. Can you share me your number? Actually, I want to discuss. Actually, I have 10 of your experience. So how we can show in our. Vikas, write my number in text in your screen 77. 777. 77099. Yeah. 35614. 35614, right? Yeah, you can take a screenshot and you can ping me today or tomorrow, whatever you want to discuss with me. Okay. So guys, today our technical discussion about to stop here, and we'll start by Saturday next session. So those who are interested, those who wants to make career in this particular domain, you can ping me in this number. We'll share the registration detail. We have EMI option. You can pay by your availability or EMI or a credit card. Both we are accepted as of now. And the course duration will be 3 months, and the classes will be weekend only, and the evening 8 to 10 the batch timing. Vikas, right? Okay, and based on audience, will we use English and Hindi both? If nobody is from wants to English or so session will be on totally Hindi. It's a depend on candidate. Okay, so if you have any question, you can ask me. Okay, what is the fees for this module? Fee we are charging for SIP and IMS 30,000, and also we are added AWS. If you want to take along with AWS, it will be 38,000 only. Okay. Why add AWS? Because in market they are asking about the cloud, so we are added this thing, because ये करने के बाद अगर आप कहीं और सोचोगे करने के लिए, it will take time, तो हमने इसको साथ में ही ऐड कर दिया है. ठीक है. That I understand, but if I'm taking all three, like IMS, SIP, and AWS, then what will be the course duration? Course duration will extend 1 month, and for AWS it will be continuous 25 classes on weekdays. Okay. Yes, and SIP and IMS will be weekend only. Mm-hmm. And all things will cover on practical. All logs available with my team. No theory concept. We are providing practical things so that you can understand in better way. कुछ लोग पढ़ा कर रहे हैं. अभी मेरे पास कॉल आया था कि you are providing practical. मैं तो सब कुछ प्रोवाइड करूंगा. ठीक है. So we are not providing only theory. Both will provide.
एंड मार्केट में जो इंटरव्यू का सिनेरियो इज टोटली चेंज. दे आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिकल. ये लॉग के अंदर क्या है इसके बारे में. एनी अदर क्वेश्चन? For outside candidate, charges will be $400. Also, you can pay in 3 MI. So, guys, who is going to join? Raise your hand so that I can understand. What about Ajay, Dhananjay, Harbhajo, Rahul, Raghu, Vikas, Wilson? Can I say something? Yes, you can. For me, is Vikas name of the teacher? It's Vikas. Yes, Vikas is excellent teacher, instructor. But for me, is a problem English, that it's not fully in English. Teacher is excellent. Harbhajo will use both the language. No issue. In our last batch, candidate joined from US and South Africa, Benin, Tanzania, okay, and even Iran. So we'll use both the language, and technical thing is easily get understood. No issue. Yeah. Because whatever we are writing, Vikas writing on the screen, only English. They are not writing any Hindi words. Yeah, no. Everything when it's written, it's no problem. But I would wait for a group when majority will be not from your country, but let's say from different parts of the world, English speaking, that will be 100%. Okay. So no issue. In your country, you can arrange at least 20 candidates. Will arrange a totally English session. I will ping you. I will ask you maybe in other group when more people will be, and I think we'll make separate session for you guys only. Those who are interested to English only. Yeah. Okay. It's very, very bad for me. I'm feeling very bad that I'm actually slowing you down when you are speaking in your language and repeating in English. It's a problem. And I'm sorry. I'm sorry for trouble. No issue. You are welcome. And Vikas is excellent. Vikas is excellent instructor. Thanks for appreciating. So guys, we are seeing only 4 to 5 hands. What about rest? Praveen, Vikas Kumar, you? Vikas, what is your background? Vikas Kumar, you? Vikas, are you there? Or just join for playing? Hello, can you hear me? Yes. Wilson. Okay, my concern also would be on language. I would prefer, like what my colleague has just said, more of English. But the instructions are quite good, but I would really prefer to be more of English speaking. So I would appreciate maybe an English instructed class. That would be okay for me.
Okay. Yes, Harbajo, you can ping me. We'll arrange based on your audience. Okay. And if the batch will be totally foreign candidates, so we'll deliver in English, no issue. But in India, candidate wants to mother language. That's why we are using Hindi so that he can get better understanding of the technology. Okay, I noted your concern. Is the session more or less finished? Yes, of course. Yeah, I thank you very much for the demo, and if it's not a problem, when some most English speaking people will be interested, just to inform me, Vikas is rarely excellent instructor and has very good overview of everything. I think he would say he would have answers to all my questions. So thank you very much for the demo, and stay in touch. Okay, so Amit, Ajay, Devashish, and Bimal, you can ping me. Okay. Thanks. Yes, all. yes. Now Okay, we sir, are okay. going to close the call. Harbajo, you can ping me if your circle wants to learn the things. We'll arrange. No issue. Okay. Okay. Thank you very much, and thanks to Vikas. Yeah, thanks everyone. Thanks, Vikas. Thanks, all. Thank you, sir. Thanks.